بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا اسم کس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ اسم جو ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے گوڑا ہے، سری نگر ہے، اسوکول ہے، نشاد باغ وغیرہ ہے۔ یا میں نے کل آپ کو دیے تھے یہاں اسم کی کچھ مثالیں، آپ کو میں نے سمجھایا تھا۔ تو لیکن ہم لفظ پڑھتے تھے تو لفظ کس کو کہتے تھے کہ دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملانے سے لفظ بنتا ہے۔ تو اس لفظ کی کچھ قسمیں ہیں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کلمہ اور مومل۔ کلمہ میں نے سمجھایا آپ کو کہ کلمہ کے با معنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، تو بے معنی لفظ کو ہم مومل کہتے ہیں۔ پھر اس کلمے کی قسمیں ہیں۔ اس کلمے کی پہلی قسم میں نے آپ کو اسم پڑھایا کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ نام ہیں، انہی ناموں کو ہم اسم کہتے ہیں۔ دیکھو، اب دنیا کے اندر کسی بھی جگہ کا نام ہو، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کشمیر ہو، یعنی کسی بھی جگہ کا نام ہو تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح یعنی میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی طرح کسی انسان کا نام ہو تو یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح کسی چیز کا نام ہو، قلم وغیرہ، تو یہ بھی اسم ہے۔ یہ میں نے آپ کو کل سمجھایا۔ یا اسی طرح کسی پرندے کا نام ہو یا جانور کا نام ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسم ہے۔ اب ہمیں یہاں پڑھنا ہے کہ فعل کس کو کہتے ہیں ہم۔ دیکھو، فعل جس کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ ورب مینز یعنی کام۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے ساتھ موجود ہو، جیسے دوڑتا ہے، آتا ہے، سنے گا وغیرہ۔ دیکھو، یہ فعل جو ہے یہ کام ہے۔ ہم کام جب کرتے ہیں تو کام ہم 3 زمانوں میں کرتے ہیں۔ یہ کام جو ہے، یا تو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، یعنی کام جو پڑھ رہے ہیں، فعل مینز کام، ہم کوئی حرکت کر رہے ہیں، کوئی ایکشن کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، یا ہم دوڑ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام، تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ اب یہ فعل جو ہے اس کے 3 زمانے ہیں، یعنی ایک کام تو ہم اس وقت کر رہے ہیں، جیسے اسلم کیا کر رہا تھا، یہ ایک کام ہے۔ جیسے اسی طرح اکبر کیا کر رہا ہے، یہ اس وقت ہم، یا آپ کیا کرو گے، جیسے میں نے لکھا دوڑتا تھا۔ دیکھو، اب اس کی 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو کام جو ہم کر رہے ہیں، یا تو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، یا تو کام کیا ہوتا ہے، میں نے کل کیا، پرسوں کیا، جو میں نے یعنی اس سے پہلے جو اس وقت ہے، اس سے پہلے جو میں نے کام کیا ہے، جو کام ہوا، اس کو ہم گزرا ہوا زمانہ کہتے ہیں۔ یعنی جو پہلے کام ہوا یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ اب جو اس وقت میں کام کر رہا ہوں، جیسے میں آپ کو اس وقت پڑھا رہا ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے حال، موجودہ زمانہ۔ اسی طرح آنے والا زمانہ جو ہے، یعنی اب میں کام کروں گا، جیسے مجھے 4 بجے کہیں جانا ہوگا، یا مجھے ابھی کھانا ہے، ابھی نہیں کھانا، ابھی کھانا ہے، یا میں ابھی نماز پڑھوں گا، یا 1 بجے نماز پڑھوں گا، جو اب میں کام کروں گا اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو یہ زمانے جو ہیں یہ 3 ہیں۔ ایک ہے گزرا ہوا زمانہ جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، دوسرا ہے کہ موجودہ زمانہ جس وقت ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، اس کو حال کہتے ہیں، تو تیسرا جو ہے آنے والا زمانہ یعنی مستقبل۔ جیسے دوڑتا تھا، یہ گزرا ہوا زمانہ ہے، کام ہوا ہے۔ اسی طرح آتا ہے، یہ موجودہ زمانہ، اس وقت آ رہا ہے۔ سنے گا جب میں اس کو بولوں گا تب سنے گا، تو یہ ابھی کام نہیں ہوا تو ہونے والا ہے، اس کو ہم کہیں گے آنے والے زمانے۔ جیسے ماضی، گزرے ہوئے زمانوں کو ماضی کہتے ہیں، تو حال، موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں، مستقبل، آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں۔ اس طرح جیسے کچھ جملے ہیں، میں آپ کو سناؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اسلم کھیل رہا تھا، اکبر دوڑ رہا ہے، اشرف آئے گا۔ یہ تینوں جو ہے، دیکھو، اسلم کھیل رہا تھا، یعنی کھیل رہا تھا، یہ گزرا ہوا زمانہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اکبر دوڑ رہا ہے، اب اس وقت دوڑ رہا ہے، یہ آنے والا زمانہ، موجودہ زمانہ ہے، اس کو حال کہتے ہیں۔ اشرف آئے گا،
कब आएगा ये मालूम नहीं, ये लेकिन आने वाले ज़माने में आएगा, तो इसको हम मुस्तकबिल कहेंगे। असलम क्या कर रहा था? हाँ, जवाब खेल रहा था। ये गुजरा हुआ ज़माना में सवाल कर रहा था, वो क्या कर रहा था, यानी ये गुजरा हुआ ज़माना है, वो क्या कर रहा था, इसको हमने कहा कि असलम खेल रहा था। इसी तरह कब खेल रहा था, आने वाले ज़माने में, मौजूदा ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में। तो कब खेल रहा था यानी खेल रहा था, अब ये काम तो क्या हुआ, ये हो चुका है, तो अब हम कहेंगे गुजरे हुए ज़माने में। वो खेल रहा था, कब खेल रहा था, गुजरे हुए ज़माने में। अब आएगा यहाँ क्या, गुजरा हुआ ज़माना। इसी तरह अकबर खेल रहा है, यह अब किस कब खेल रहा है, मौजूदा ज़माने, यानी इस वक्त काम हो रहा है, अकबर खेल रहा है, इसको लिखेंगे हम मौजूदा ज़माने में, इसको लिखेंगे हम मौजूदा ज़माने में। इसी तरह किस ज़माने में, आने वाले ज़माने में, मौजूदा ज़माने या गुजरे हुए, तो किस ज़माने में, वो मौजूदा ज़माने में, यानी खेल रहा है, इस वक्त खेल रहा है। इसी तरह फराज क्या करेगा, फराज क्या करेगा मतलब क्या है, ये अब करेगा, वो कब करेगा काम, क्या करेगा, लेकिन आने वाले ज़माने में, यानी कब करेगा, आने वाले ज़माने में, मौजूदा ज़माने में या गुजरे हुए, यानी आने वाले ज़माने में। अब देखो बच्चों, असलम, अकबर और फराज तीनों के साथ काम मौजूद है, यानी अकबर खेल रहा था या अकबर काम कर रहा था, असलम खेल रहा था, फराज क्या करेगा, तीनों के साथ काम है, यानी कौन कब कर रहा है, और काम के साथ साथ ज़माना भी मौजूद है, इसी काम को फेल कहते हैं। यानी एक तो काम कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ साथ ये भी दिया गया है कि कब काम कर रहे थे, ये इस वक्त काम कर रहा है कोई आदमी, या उसने काम किया या करेगा, तो उनके साथ इसी को फेल कहते हैं। ये तो इसम की दूसरी कसम है। सीखो, फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के साथ मौजूद हो, जैसे दौड़ता है, आता है, सुनेगा। यानी अब हमें जो काम हम करते हैं, या तो इसी तरह हम कहेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं इस वक्त खा रहा हूँ। मैंने खाना खाया, इसका मतलब मैंने खाया, ये गुजरा हुआ ज़माना है। या मैं खाना खाऊंगा, तो इसका मतलब है ये मुस्तकबिल है, आने वाला ज़माना है, अभी नहीं खाया, दे खाऊंगा। इसी तरह मैंने लिखा, इसका मतलब मैं लिखना मुझे था, मैंने वो लिखा, ये काम हुआ है, अब इसको कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना, पास्ट। इसी तरह मैं इस वक्त लिख रहा हूँ, इसको हम कहेंगे हाल, हाँ, प्रेजेंट, इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। या मैं लिखूँगा, अब न लिखा है, न लिख रहा हूँ, बल्कि लिखूँगा, अब काम करूँगा, तो उसका मतलब है ये आने वाला ज़माना है, इसको हम फ्यूचर कहते हैं। देखो कुछ जुमले इसमें दिए गए हैं, नीचे दिए हुए जुमलों से इसम और फेल अलग अलग चुन लीजिए। देखो, क्या आपने खत लिखा, क्या आपने खत लिखा, ये आप जो है या खत जो है ये इसम है, तो लिखना जो है ये काम है। क्या आपने खत लिखा, आपने काम किया, कौन सा काम किया, लिखा, तो ये लिखा जो है ये फेल है। इस तरह अहमद लिख रहा है, अहमद जो है ये इसम है, अहमद नाम है, ये इसम है। लिख रहा है यानी क्या काम कर रहा है, लिख रहा है, तो ये फेल है। इस तरह मतीन दौड़ते हुए हंस रहा है, देखो मतीन जो है ये लड़के का नाम है, तो ये इसम है। मैंने कहा कि किसी भी चीज़ का नाम जो है वो इसम होता है। दौड़ते हुए यानी ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, दौड़ रहा है। हंस रहा है, हंसना भी क्या है, काम है, तो हम कहेंगे मतीन ये जो है ये इसम है, दौड़ते हुए ये फेल है, हंस रहा है ये फेल है। इस तरह अनवर कॉपी पर लिखेगा, अनवर जो है ये इसम है, क्योंकि लड़के का नाम है। कॉपी जो है ये भी चीज़ का नाम है, तो ये भी इसम है। तो लिखेगा ये क्या है, फेल है। इस तरह आप फराज और फाइक खेल रहा है, फराज और फाइक ये दोनों लड़के हैं, दोनों क्या है, इसम है, तो खेल रहा जो है ये काम है, तो यह है फेल। इस तरह आयमन रो रही थी, आयमन जो है ये लड़की का नाम है, तो ये इसम है, तो इसी तरह ये क्या है, रो रही है, ये फेल है। इस तरह आप सारे ये लिखना। सना आम खाएगा, देखो ये जुमले में ये आप खुद निकालना, इसमें इसम क्या है तो फेल क्या है। आमा खाना पकाती है, इसमें भी देखना है, ये आपके लिए सवाल है, काम है घर में, क्या आप देखोगे अम्मा खाना पकाती है, इसमें इसम कौन है और फेल कौन है। खलीक 5वें में पढ़ता है, इसमें भी देखना है इसम क्या है और फेल क्या है। मिसबाह अजीर से लड़ती है, इसमें भी देखना आपको इसम क्या है और फेल क्या है। चपरासी घंटी बजा रहा है, इसमें देखना आपको इसम क्या है और फेल क्या है। दरवाज़ा खुला है, ये भी देखना आपको। इस तरह दरख्त ज़मीन पर गिर पड़ा, इसमें देखना। इसी तरह दूसरा और एक है हरफ,
हरफ किसको कहते हैं? आप देखो हरफ मैंने यहाँ लिखा, अब फ़ेल के बाद हरफ है। हरफ वो लफ्ज़ है जो इसम को इसम से या इसम को फ़ेल से मिलाता है। यानी हरफ हम उसको कहते हैं जो इसम को इसम से या फ़ेल इसम को फ़ेल से मिलाता है। यानी इसम को इसम से मिलाता है या फ़ेल को फ़ेल। जैसे का, की, के, से, में, तक, ने वगैरह, ये सारे जो हैं ये हुरूफ है। जैसे देखो अकबर ने खत लिखा, अकबर ने खत लिखा। देखो अकबर जो है ये इसम है, खत जो है ये इसम है, लिखना जो है ये फ़ेल है, ने जो है ये हरफ है, ये हरफ है। अब यहाँ उसने क्या किया, यानी अकबर ने खत लिखा, इसम को इसम से मिलाया और इसम को फ़ेल से भी मिलाया। अकबर ने खत लिखा, यहाँ अकबर इसम है, खत इसम है, लिखना काम है, फ़ेल है, लेकिन ने जो है ये हरफ है। इस तरह श्रीनगर से जम्मू तक गाड़ी में जाते हैं। श्रीनगर जो है ये भी इसम है, जम्मू ये भी इसम है, हाँ गाड़ी ये भी इसम है। जाते हैं, जाते मीन्स क्या, काम, यानी हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ जो है से जो है या तक जो है ये, यानी जम्मू, श्रीनगर से जम्मू, श्रीनगर को उसने मिलाया किसे, इसम को इसम से मिलाया, श्रीनगर को जम्मू से मिलाया। हाँ अच्छा, फिर श्रीनगर और जम्मू को तक, गाड़ी, इसको गाड़ी से मिलाया। तो इसका मतलब है इसम को इसम से मिलाया। तो ये से और तक जो है ये इसम है, ये हरफ है। यहाँ श्रीनगर इसम है, जम्मू इसम है, गाड़ी इसम है, जाते फ़ेल है, तो ये से जो है बीच में बच गया, ये क्या है, हरफ है। दानिश उस स्कूल से आया, दानिश उस स्कूल से आया, दानिश जो है ये इसम है, उस स्कूल इसम है, तो आया है, इस काम, आया मीन्स फ़ेल, काम से मिलाया, तो यहाँ से जो है ये क्या, इसम, ये हरफ है। फायक का बाप जा रहा है, फायक जो है ये इसम है, बाप जो है इसम है, जा रहा है जो है ये क्या है, काम है, लेकिन उनको मिलाया किसने, फायक का बाप। हाँ, तो इस तरह का जो है ये हरफ है। इस तरह बाकी जो जुमले हैं ये आप इसी तरह, नईम की माँ खाना पकाती है, यहाँ आप देखना इसम, ये हरफ क्या है, यहाँ की है। घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, यहाँ में क्या है, हरफ है। इसी तरह अलिफ के पहले जुमले में ने किसको मिलाता है, तो ने जो है ये जो है ये हरफ है। हाँ, पहले जुमले में ने इसम को इसम से मिलाता है ना, अकबर ने खत लिखा, तो ने जो है इसम। दूसरे जुमले में से, तक और में किसको मिलाता है, जैसे यहाँ मैंने देखा से, तक और में, ये सारे हुरूफ है। हाँ, दूसरे जुमले में से इसम और इसम को, तक और इसम को, और में इसम और फ़ेल को, है ना। यहाँ है इसम को इसम से मिलाया, फिर इसम को इसम से मिलाया, फिर इसम को फ़ेल से मिलाया। यानी अब इसम को इसम, कोई हरफ जो है, हाँ, ये जब इसम को इसम से मिलाएगा या इसम को फ़ेल से मिलाएगा, इनको क्या कहते हैं, हरफ कहते हैं। जुमले में से किसको मिलाता है, देखो जुमले में से यहाँ दानिश इसम, स्कूल इसम, से आया फ़ेल, यहाँ इसम फ़ेल को इसम यहाँ इसम फ़ेल से मिलाता है, यहाँ इसम और फ़ेल को इसम फ़ेल से मिलता है, तो इसको हम कहेंगे। तो इसी तरह यहाँ जुमले में का किसको मिलाता है, हाँ, जुमले में की किसको मिलाता है, ये आप देखना, ये आप खुद करना। ये देखना जुमले में मैं किसको मिलाता है। हाँ, अब आप बच्चों आपने देखा कि ने, से, तक, में, का, की, ऐसे अल्फाज हैं जो इसम को इसम से या इसम को फ़ेल से मिलाते हैं, ऐसे अल्फाज को हुरूफ कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जो इसम को इसम से या इसम को फ़ेल से मिलाए, तो उसको हम हुरूफ कहते हैं। अब हुरूफ वो लफ्ज़ है जो इसम को इसम से या इसम को फ़ेल से मिलाता है, जैसे का, की, के, से, में, तक, ने, पर वगैरह। तो ये जो है कुछ जुमले ऐसे हैं, तो ये आप देख लेना, फिर उसमें से आप क्या, ये अलग अलग निकाल। या इस तरह यहाँ कुछ जुमले हैं, मैंने सबक पढ़ा, इसमें आप इसम निकालना, फ़ेल निकालना और हुरूफ निकालना। हाँ, अरशद अपने कमरे में सो रहा है, बंदर दरख्त पर नाच रहा है, गाय मैदान में चल रही है, दानिश का बाप आया था, शम्स ने फायो को मारा, राशिद हर एक की चुगली खाता है, मैं घर से उस स्कूल तक दौड़ता, असलम का भाई भाग गया, मैं आपको घर पर मिलूँगा,
کوا چھت پر کائیں کائیں کر رہا ہے، اسلم نے سیب کھایا ہوگا، فراز صحن میں کھیل رہا ہے، مصباح ضمیر احمد کی بیٹی ہے، ابا جموں سے آئے گا۔ تو اس میں آپ یہاں جیسے یہاں نکالا ہمیں، عامر نے سبق پڑھا ہے، عامر و سبق یہ اسم ہے، پڑھا فعل ہے، نی حرف ہے۔ اس طرح ارشد اپنے کمرے میں سو رہا ہے، ارشد جو ہے یہ اسم ہے، کمرے یہ چیز کا نام ہے تو یہ اسم ہے، ارشد لڑکے کا نام ہے، سو رہا ہے تو یہ کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے، میں جو ہے حرف۔ اسی طرح یہ باقی جملے جو ہیں یہ خود آپ نکالنا کہ اس میں اسم کون ہے، حرف کون ہے اور فعل کون ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔